Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are uploading the lecture number 9 और लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज पिछले लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चन कर दिए थे, तो आज हम 13 से आगे की क्वेश्चन करेंगे एंड आज ही हम अपने इस चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे ताकि कल से फिर हम अपना अगले चैप्टर को स्टार्ट करें। 13 क्वेश्चन कर लिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 14, Why few organometallic groups form complexes with lanthanide, यानी कि lanthanide के साथ कुछ एक organometallic group ही क्यों complex बनाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि दिस इज बिकॉज 4f ऑर्बिटल्स आर वेल शील्डेड एंड आर इनसाइड द एटम, thus दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द पाई बैक बॉन्डिंग। तो जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे आपके सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस बनने के ज़्यादा चांसेस है। अब हमें पता है कि सबसे अच्छे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स हैं किसके साथ बनते हैं, जब हमारा जो लिगेंड है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर शिफ्ट रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस। इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द लेंथेनाइड्स विच आर यूज्ड एज द शिफ्ट रीजन्स, है ना, कई बार आपने एग्जाम में देखा होगा। The shift regions are ions in the rare earth lanthanide series coordinated to organic ligand, generally beta diketone complexes of europium 3 and promethium 3 positive. Now most recent shift regions are EU DPM thrice, है ना। आगे क्या है, EU F4D thrice. The name came from tris dipivomethanato Europium entries 1112233 heptafluoro 77 dimethyl 35 octane di। सो दिस इज़ द पैराग्राफ। यहाँ पे फुल फॉर्म दी है DPM एंड F4D की, जो कि लिखना उतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है अगर आपको नहीं लिखना हो पूरा। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बता रहा है जी हमको, shift regions provide a method for spreading out NMR absorption pattern without increasing the strength of the applied field। ठीक है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बिना इंक्रीज किए ये हमारे सिग्नल्स को क्या कर सकता है, स्प्रेड आउट कर सकता है। एडिशन ऑफ शिफ्ट रीजन्स टू अप्रोप्रिएटली फंक्शनलाइज्ड सैंपल्स रिजल्ट्स इन सब्सटैंशियल magnification of the chemical shift differences of non-equivalent protons. There are two major applications of the shift region to structure determination. Number one, to simplify the spectrum, and second to assign the protons from the data on the response curve. Effectiveness of the shift region analysis may be increased by the use of low temperature NMR. Why do actinides show higher oxidation state lanthanide, या फिर हम कह सकते हैं why do actinides show greater multiplicity of oxidation state. Actinides show a greater multiplicity of oxidation state because 5f orbital extend into the space beyond 6 and 6p orbital and participate in bonding, while 4f orbital are totally shielded by outer orbital and thus unable to take part in bonding. The participation of the 5f orbital explain the higher oxidation state shown by the earlier actinide elements. The greater extension of 5f orbital compared with 4f is shown by the difference in ESR, यानी कि इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा। आगे क्या कह रहा है ये, सिंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज, यानी कि जो लोअर एक्टिनाइड्स है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द conversion of 5f to 6d is less than that required for the conversion of 4f to 4d. The lower oxidation actinides should on a comparative basis show more higher oxidation states such as +4, +5, +6 and +7. Correspondingly, since in the second half of the actinide series the energy required for the conversion of 5f to 5d should show more lower oxidation states such as +2 like lanthanides, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कॉमन इन द एक्टिनाइड्स। इसके कहने का सिंपल मतलब देखिए क्या है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाने उसके लिए कम एनर्जी चाहिए तो वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और उसके बाद के जो हाइयर आपके एक्टिनाइड्स हैं वहाँ पे एनर्जी, अब यहाँ पे जो है
इन्होंने क्या लिखा है 5s से 6d में जाने के लिए उसके कंपैरिजन में एनर्जी क्या लग रही थी कम। अब यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि इसने क्या बोला एक्टिनाइड सीरीज और लिखा 4s से 5d है। ये वाली जो कन्वर्जन है वो तो लेंथेनाइड में होती है, तो इसके कंपैरिजन में है ना, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए वो क्या कम ही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। नाउ नेक्स्ट क्या, इसके कंपैरिजन में मतलब इस लेंथेनाइड वाले के कंपैरिजन में एक्टिनाइड्स वाले को यानी कि जो हाइयर है क्या लग रही है ज़्यादा एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्टिनाइड फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस बट लेंथेनाइड्स डोंट। एक्सप्लेन। Actinides show higher oxidation number than lanthanides. When the oxidation state of an actinide increases to +6, the ion is no longer a single ion. There is high charge density on the ion which leads to the form of oxygenated ion, that is CO2 2+. Example दिया है, such oxocations are stable in aqueous solutions. Next question, give reasons for the observation that a large number of oxides of actinide elements are non-stoichiometric but same is not true for the lanthanide. Answer क्या है जी इसका, the compounds of indefinite structure and composition are known as non-stoichiometric compound. They are formed because of the ability of the metal to exist in more than one oxidation state. Lanthanide forms non-stoichiometric compounds in lesser number as compared to actinides because greater variation of oxidation states compared to the lanthanides or rare earth is to be expected among actinide metal because of the atomic radii and large number of the energy level of the valence electron are close together. Several stable oxidation state are encountered for most actinide metal. यानी कि actinides क्या करती हैं, बहुत सारी different oxidation state को show करती हैं और ज़्यादा कंपाउंड बनाती हैं, यानी कि ज़्यादा ऑक्साइड्स बनाती हैं जो कैसे होते हैं कि नॉन स्टॉक्योमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनाइड्स हैव greater tendency to form complexes than lanthanides. Again same reason, actinides have a greater tendency to form complexes because of higher nuclear charge and small size of their atoms and greater multiplicity of the oxidation state. यानी कि actinides जब ज़्यादा oxidation state show करती हैं तो वो different type के complexes बना सकते हैं, है ना। और इसमें क्या देखा था हमने कि इसका जो 5f orbital है it is more extended in space, so it can combine with the different type of ligands and it can form the different type of complexes. Now question number 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमको अकाउंट फॉर द फैक्ट, ठीक है, दैट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ यूरोपियम 3+ सेमर्बियम 3+ are higher than those calculated by spin only values and also by the total angular momentum J values of the ground state. For lanthanum 3+ F0 and two actinides gadolinium 3+ F7 and lutetium 3+ F14 which have S term symbol which has S term symbol L is equal to 0. I don't know why they have written this line. ये कह सकते हैं कि जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर ही है ना एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो हम 0 काउंट करते हैं दैट इज़ ऑर्बिट का नो इफेक्ट। लेकिन ये वाली लाइन का मतलब पता नहीं है। देखो मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। इसके कहने का मतलब ये है कि जो ये तीन एलिमेंट है ना लैंथेनम 3+ गैडोलियम एंड ल्यूटेशियम, इनमें क्या है जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आता है वो स्पिन वैल्यू से ही आता है। मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो इसका कोई रोल नहीं होता है ना। किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, μs इज इक्वल टू यानी कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज स्पिन ड्यू बिकॉज ऑफ द अनरूट n/n+2 n क्या आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। The other lanthanide ions do not obey the simple relationship. The 4 of electron are well shielded from the external field by the overlying 5s and 5p electron. Thus, the magnetic effect of the motion of the electron in its orbital is not quenched out. Thus, the magnetic moment must be calculated taking into account of the both magnetic moment of the unpaired electron as well of the orbital motion. In lanthanides, the spin contribution S and orbital contribution L coupled together to give a new quantum number that is J. और J की वैल्यू कैसे लेते हैं, L-S लेते हैं अगर आपकी जो शेल है दैट इज हाफ फिल्ड, और L+S लेते हैं अगर शेल कैसी है मोर देन हाफ फिल्ड। और ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, N क्या है, J क्या है, L क्या है। Thus, magnetic moment mu is calculated in Bohr magneton by mu is equal to G√J+1। G क्या है, लेंज स्प्लिटिंग फैक्टर, एंड इस J की जो वैल्यू है कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखा है 1/2 यानी कि इसको हम 3/2 भी बोल सकते हैं। 3/2
प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइडेड बाई 2j प्लस वन। आपको क्या करना है, इस पूरे फॉर्मूले को भी लिख, मतलब ये सारी चीज़ें आपको लिख के आनी है एग्जाम में। क्वेश्चन इज कंटिन्यूड। The agreement of calculated magnetic moment of europium 3 plus is poor and that of the samarium 3 plus is not very good. The reason is that with europium 3 plus the spin orbital quantum constant is only about 300 centimeter inverse. This means that the difference in energy between the ground state and the next state is small. Thus the energy of the thermal motion is sufficient to promote same electron and partially populate the higher state. Because of this, the magnetic moment are not solely determined by the ground state configuration. Measuring the magnetic moment at a very low temperature prevents the population of higher energy level. ये वाला तो एग्जाम में आपने काफ़ी बार क्वेश्चन देखा होगा कि यूरोपियम 3 प्लस के केस में जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड से डिफरेंट की होती है, और उसका रीज़न हम क्या लिखते हैं, हम उसका यही रीज़न लिखते हैं ना कि पॉपुलेशन ऑफ द हायर स्टेट, यानी कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं किसमें, ग्राउंड स्टेट की जगह हायर एक्साइटेड स्टेट में भी। अब ये क्या बोल रहा है कि जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट सिर्फ आपका ग्राउंड स्टेट पे डिपेंड नहीं रहता लो टेम्परेचर पे, जबकि पॉपुलेशन ऑफ हायर लेवल जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। Since these excited states have higher J value than the ground state, so the actual magnetic moments are higher than those of calculated by considering ground state. On question is continued. The agreement of calculated magnetic moment of europium 3 plus is poor and that of the samarium 3 plus is not very good. The reason is that with europium 3 plus the spin orbital quantum constant is only about 300 centimeter inverse. This means that the difference in energy between the ground state and the next state is small. Thus the energy of the thermal motion is sufficient to promote same electron and partially populate the higher state. Because of this, the magnetic moment are not solely determined by the ground state configuration. Measuring the magnetic moment at a very low temperature prevents the population of higher energy level. ये वाला तो एग्जाम में आपने काफ़ी बार क्वेश्चन देखा होगा कि यूरोपियम 3 प्लस के केस में जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड से डिफरेंट की होती है, और उसका रीज़न हम क्या लिखते हैं, हम उसका यही रीज़न लिखते हैं ना कि पॉपुलेशन ऑफ द हायर स्टेट, यानी कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं किसमें, ग्राउंड स्टेट की जगह हायर एक्साइटेड स्टेट में भी। अब ये क्या बोल रहा है कि जिसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट सिर्फ आपका ग्राउंड स्टेट पे डिपेंड नहीं रहता लो टेम्परेचर पे, जबकि पॉपुलेशन ऑफ हायर लेवल जो है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। Since these excited states have higher J value than the ground state, so the actual magnetic moments are higher than those of calculated by considering ground state. On next question, explain why the magnetic moment of the trivalent gadolinium complexes can be obtained by spin only formula but not from the trivalent terbium complexes. मतलब टर्बियम के कॉम्प्लेक्सेस जैसा नहीं है, ऐसा क्यों है? तो इसमें क्या है कि गैडोलियम के केस में हमको देखने को मिलती है जी हमारी हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है ना, वही लिखा है कि गैडोलियम की 4s7 कन्फिग्रेशन होती है, हाफ फील्ड f ऑर्बिटल होते हैं, और आपका जो ml है वो क्या बन जाएगा, वो सारा इसने यहाँ लिखा है। देयरफॉर द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, क्योंकि आपका जो l की वैल्यू है वो क्या निकल आती है, जीरो निकल के आती है ना। अच्छा जी, और आई थिंक आपको मालूम ही होगा कि हम l कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, कि उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ऐसे करके हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है। तो जैसे इसका नंबर अगर +3 है, एक इलेक्ट्रॉन, तो हम 3 में ऐड करेंगे, अगले में क्या है 2 ऐड करेंगे, यहाँ कितना है 1, तो 1 ऐड करेंगे, आई थिंक आपको आता होगा, देन 0 -1 -2 एंड -3। तो इस वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन सभी आपके किसके पास है, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 3, दूसरा इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय दूसरा, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, +2 वाले आपका जो ऑर्बिटल है उसके पास भी। तो ओवरऑल जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो ऑर्बिटल जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, 0 है। तो सिर्फ स्पिन फार्मूले से ही जो है यहाँ पे क्या निकलता है, आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आप जो है सेम यही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, √10 × n+2, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं गैडोलियम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, 7 है, तो √63 जो कि किसके इक्वल निकलता है, 7.9 के। अब टर्बियम की कन्फिग्रेशन क्या है, 4s कन्फिग्रेशन, तो आपका जो ml है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, फॉर इट इसके, और तो इसके केस में ऑर्बिटल और स्पिन कंट्रीब्यूशन दोनों की मैग्नेटिक मूवमेंट जो है एंड द रिजल्टेंट क्वांटम नंबर J यूज़ किया जाता है क्या करने में, कैलकुलेट करने के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट को, ठीक है।
इज ऑब्टेन्ड, कैसे ऑब्टेन करते हैं हम, रसल सॉन्डर्स कपलिंग ऑफ द एल एंड एस क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेमरमियम 3+F5 यूटिलाइजिंग द इक्वेशन यू इफेक्टिव जी। मतलब यही बोल रहा है कि सेमरमियम 3+ यानी कि जो F5 में है उसको आप क्या करो, जो पीछे हमने यू का फॉर्मूला निकाला था ना मैग्नेटिक मोमेंट का, जिसमें हम ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन और स्पिन, जो स्पिन आपका क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक मोमेंट है स्पिन की वजह से, उन दोनों को हमने क्या किया, रसल साउंडर कपलिंग करके जे निकाला। तो जे को यूज़ करके जो हम निकाल रहे थे मैग्नेटिक मोमेंट, उसने बोला है कि रूम टेम्परेचर पे आपको उसको प्रिडिक्ट करना है। एक्सप्लेन वाई इट इज़ लोअर देन द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल। अब सेमरमियम के केस में भी क्या है, वैल्यू लोअर आती है जितनी आनी चाहिए, है ना, तो बोल रहा है क्यों। अब देखिए, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लेंथेनाइड्स आयन आर गिवन बाय द इक्वेशन गिवन बिलो। आपको इक्वेशन नीचे दी जा चुकी है। जी क्या है, लेंज स्प्लिटिंग फैक्टर है ना, और जे कैसे निकला है, एल और एस की कपलिंग से निकला है ना, और इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप, जी को निकालने का भी क्या फॉर्मूला है ना, दिया है यहाँ पे। अच्छा चलिए जी, अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पर, पीछे आपने देखा होगा G = 3/2 था, है ना, तो उसके इसमें यहाँ पे ना 2 नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पे लिखा होगा 3/2, है ना। चलो आगे देखो, फॉर सेमरमियम 3+F5 सिस्टम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। इसकी टर्म सिंबल क्या निकलता है जी, 6H5/2। इसके केस में आपकी स्पिन की वैल्यू क्या है, 5/2, है ना, एंड एल की वैल्यू क्या है, 5। तो जे की वैल्यू कितनी निकलती है जी, 5/2। क्यों, क्योंकि क्या है, ये आपका हाफ फील्ड है ना, तो L - S करके निकालोगे आप। बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन we get the value of the G = 217. Then we calculate the U effective for the given equation and it comes out to be 0.84, while the experimental value क्या है, वो आपकी है 1.54। तो वैल्यू क्या निकली आपकी, डिफरेंट निकली ना, जो आपने कैलकुलेट की उसके कंपैरिजन में। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, द एक्सप्लेनेशन फॉर लोअर वैल्यू ऑफ यू इफेक्टिव देन यू एक्सपेरिमेंटल इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया था ना आपको रीजन ऊपर, जब वो पूछ रहा था कि यूरोपियम एंड सेमरमियम के केस में जो है वो वैल्यू क्यों डिफरेंट निकलती है। इस क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ मोर बेसिक, Nd2O3 नायोडियम ऑक्साइड और DyO3, है ना, इसको क्या बोलते हैं, डाइस्प्रोसियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ थर्मली मोर स्टेबल, सेमरमियम नाइट्रेट और आपका TM क्या होता है, थूलियम नाइट्रेट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेंथियम, ल्यूटीशियम, यूटर्बियम एंड सीरियम के जो है वो मतलब क्या दे रखे हैं, आयंस दे रखे हैं, कैटायंस दे रखे हैं, आर डायमैग्नेटिक, व्हाइल सेमरमियम 3+ हैज़ लो पैरामैग्नेटिज्म। Here we have answers. So first का आंसर क्या है जी, नायोडियम ऑक्साइड इज मोर बेसिक देन डायस्पोरियम ऑक्साइड। नायोडियम 3+ हैज़ ग्रेटर आयनिक रेडियस देन डायस्पोरियम। दस आपका जो ये ऑक्साइड है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है डायस्पोरियम का, तो उसका मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, और साइज़ छोटा है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है, तो वो कैसा है, वो लेस बेसिक है। सेकंड का आंसर क्या है, अ क्रिस्टल विथ स्मॉलर आयन हैज़ ऑलवेज मोर स्टेबल लैटिस हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो थूलियम 3+ बीइंग स्मॉलर देन सेमरमियम it should have a more stable lattice and thus be more thermally stable. Next, semermium 3+ has 4F5 configuration having unpaired electron, whereas lanthanum, lutetium, ytterbium and cerium have empty or incomplete 4f orbitals, ठीक है जी। उसके पास क्या है, empty है, आपके फुल्ली फिल्ड है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो आपका पैरामैग्नेटिज्म कहाँ से आएगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेमरमियम के पास है इसलिए पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग in the order of decreasing reducing strength, europium 2+, semermium 2+, and ytterbium 2+, and second के why the separation of lanthanides is a difficult task। तो सबसे पहले का आंसर देखिए, क्या आंसर है जी, फर्स्ट का द ऑर्डर इज सेमरमियम 2+, देन यूरोपियम 2+, एंड यटर्बियम 2+। क्या बोल रहा है ये, डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, है ना, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ यानी कि सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। अभी सामने वाले को कैसे रिड्यूस करेगा, ये सामने वाले को रिड्यूस करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के,
और इसकी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या है कि ये अपनी +3 यानी कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर कर लेगा लेंथेनाइड्स की। अब इसके केस में हाफ फिल्ड और इसके केस में फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है ना, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन उतना ईजिली नहीं देंगे, इसलिए सेमरमियम जो है वो बेटर। आपने एक CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा होगा, वह सेमरमियम इज़ बेटर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर देन यूरोपियम 2+। क्यों, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या करता है, हाफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर कर लेता है ना। अगला क्वेश्चन की लेंथेनाइड्स की जो सेपरेशन है वो डिफिकल्ट क्यों है। All the lanthanides have similar outer electronic configuration and display mainly +3 oxidation state in their compound. Therefore, lanthanides have exceedingly similar chemical properties. Their similarity is much closer than that of ordinary transition elements because lanthanides differ mainly in the number of 4f electron. They are buried deep inside the atom of the lanthanides and don't interfere इन्फ्लुएंस उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं करते और इसको लिगेंड्स जो है वो इंटरफेयर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ द trivalent lanthanide ions. Thus, all for the practical purpose, the size of the lanthanide ion is almost identical. जिसके results कैसे होंगे, chemical property के almost similar होंगे। अच्छा, अगला क्या है जी, write the principle of separation of lanthanides by ion exchange method। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। आयन एक्सचेंज मेथड जो है आपका, दैट इज मोस्ट रैपिड एंड इफेक्टिव मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द लेंथेनाइड्स। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। नंबर 1, लेंथेनाइड्स आयन ऑन कॉन्टैक्ट विद सिंथेटिक रेसिन कंटेनिंग, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा या सल्फोनिक ग्रुप होगा, है ना, विच अंडरगो प्रोटोन एक्सचेंज। तो लेंथेनम जो आपके ये क्या है, लेंथेनम के जो ये आयन्स हैं कैटाइंस हैं, और आपका जो रेसिन है जिसके पास क्या है कि 3 हाइड्रोजन, यानी कि कैसे हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है ना आपकी। जैसे देखो CuH ग्रुप है, SO3H है, तो इसके H को रिप्लेस कर सकती है कौन, मेटल कर सकती है रिप्लेस, यहाँ पे देखिए। और सिमिलरली आपने जो ये क्वेश्चन भी देखा होगा, है ना, एक क्वेश्चन था कि जो आपके लेंथेनाइड्स हैं वो वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं, है ना, तो लेंथेनाइड्स जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे, जब आपके रेसिन के साथ ट्रीट करेंगे तो H को रिलीज कर रहा है ना। अगला क्या है, द बॉन्डिंग ऑफ द लेंथेनाइड आयन टू द रेसिन डिपेंड्स ऑन द साइज, दैट इज स्मॉलर द साइज ऑफ द लेंथेनाइड आयन more firmly it is bound to the resin and vice versa. Since lanthanides ions are hydrated, therefore the size of the hydrated ions should be considered for the binding purpose। यानी कि आपने लेंथेनाइड की साइज को नहीं, जो हाइड्रेटेड हो चुका है, यानी कि स्मॉलर जो लेंथेनाइड आयन होता है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, तो हाइड्रेटेड होने के कारण उसका साइज सबसे बड़ा हो गया। तो जब हाइड्रेटेड होने के बाद जिस लेंथेनाइड का साइज सबसे छोटा होगा वो आपके रेसिन के साथ अच्छे से बाइंड करेगा। आगे देखो, हाइड्रेशन ऑफ द आयन डिपेंड्स ऑन साइज, वही जो मैंने बताया, स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन। देयरफॉर इन केस ऑफ द लेंथेनाइड्स द स्मॉलेस्ट लेंथेनाइड आयन नेमली ल्यूटीशियम बीइंग द मोस्ट हेवीली हाइड्रेटेड, दस इट विल बिकम हैविंग द मैक्सिमम साइज, तो ल्यूटीशियम का साइज सबसे बड़ा हो जाता है। देयरफॉर द लीस्ट फर्मली बाउंड टू द रेसिन which reverse will be the case with lanthanum 3+, which will be the most firmly bound to the resin। ठीक है, तो इसके साथ हमने अपने इस चैप्टर के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। तो कल से हम एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।